رمضان المبارک کے معتبر مہینے میں فضی شاہ صاحب کی والدہ محترمہ کے سال ثواب کے لیے بنگال روڈ پر تقریب کا اہتمام کیا گیا، اور اس تقریب میں فضی شاہ صاحب کی والدہ کے لیے، جو کہ ایک مایہ ناز، معروف اور بہترین قانون دان کے طور پر جانے جاتے ہیں، ان کی والدہ کی سال ثواب کے لیے تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہونے کے بعد معروف قانون دان سید فضی علی شاہ کی والدہ صاحبہ کے لیے خصوصی طور پر دعا کی گئی، اور افطار کے اس موقع پر وہاں پہ موجود حاضرین نے فضی شاہ کی والدہ صاحبہ کے لیے دعائیں خیر کی، اور تمام لوگوں نے ان کے جنت میں درجات بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں مانگی۔ ایلفرٹ لندن میں اس پروقار تقریب میں ہدیہ عقیدت آقا دو جہاں کی خدمت میں پیش کیا پاکستانی کمیونٹی کے بہت ہی خوبصورت اور باکمال سنگر سہیل سلامت نے نعت شریف پیش کی۔ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں اپنے بہترین کلام سے حاضرین محفل کو محظوظ کیا۔ لائی رکھی سونے ہو چنگیا کے مندیا، نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں ہن، لائی رکھی سونے چنگیا کے مندیا، نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں۔ آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام ہاں، ہو لوکی کہندے خاص مینوں، ہو میں تے اما تو بھی آواں، ہو لوکی کہندے خاص مینوں، ہو میں تے اما تو بھی آواں، ہو گل جے بنائی تے ہو گل جے بنائی تے بنائی رکھی سونے چنگیا کے مندیا، نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں ہن، لائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں ہن، لائی رکھی سونے ہو چنگیا کے مندیا، نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں۔ سہیل سلامت مایہ ناز اور مشہور سنگر کی نعت کے بعد ترجمان گلوبل ٹی وی UK کے چیئرمین جناب ذوالفقار علی بھٹو کو اس موقع پر اسپیشل حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس موقع پر انہوں نے خوبصورت انداز میں خداوند تعالیٰ کے حضور اپنا کلام پیش کیا، جو کہ حاضرین محفل نے پسند کیا۔ بسم اللہ۔ میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن آج کیونکہ شاہ صاحب کی والدہ محترمہ کا ختم شریف بھی ہے، اور یہ محفل کیونکہ پورا رمضان چل رہی ہے، تو چند اشعار جو میں نے لکھے ہیں آج کی افطاری کیونکہ ندیم بٹ صاحب اور افضال بھائی کی وجہ سے ہے، اور انہوں نے سارا ماشاءاللہ ایکسٹرا انتظام کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جزا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں رزق میں اضافہ کرے۔ ہم کے لیے چند شعر ہے شاہ صاحب، کہتا ہے کہ یا رب تیرے سامنے
सर झुका के रोना चाहता हूँ। या रब तेरे सामने सर झुका के रोना चाहता हूँ, तेरे कंधों पे सर रखकर, तेरे कंधों पे सर रखकर हिचकियों से रोना चाहता हूँ। या रब अगर तू मुझ पर अपनी नजर करम कर दे तो, या रब तू अगर मुझ पर अपनी नजर करम कर दे तो फिर अपने जिस्म रूह को, फिर अपने जिस्म रूह को तेरे नूर में धोना चाहता हूँ, फिर अपने जिस्म रूह को तेरे नूर में धोना चाहता हूँ। ये मुमकिन हो सकता है, ये मुमकिन हो सकता है सिर्फ तेरे एक गुण से, ये मुमकिन हो सकता है सिर्फ तेरे एक गुण से। मैं अपनी रूह को, मैं अपनी रूह को तेरे नूर में धोना चाहता हूँ। तू अगर मेरी जात पर एकदम खुश हो जाए तो, तू अगर मेरी जात पर एकदम खुश हो जाए तो अपनी 7 नस्लों को, अपनी 7 नस्लों को तेरी राह में खोना चाहता हूँ। तो अपनी 7 नस्लों को तेरी राह में खोना चाहता हूँ। या रब तेरे सामने सर झुका के रोना चाहता हूँ, तेरे कंधों पे सर रखकर हिचकियों से रोना चाहता हूँ। या रब तू अगर मेरे शहीदों को अपनी रहमतों से भर दे तो, या रब तू मेरे शहीदों को अपनी रहमतों से भर दे तो तेरे नूर की बारिश में, तेरे नूर की बारिश में तस्बीह को परोना चाहता हूँ। तेरे नूर की बारिश में तस्बीह को परोना चाहता हूँ। या रब तेरी जात के जलवे कायनात में बिखरे हैं हर सू। या रब तेरी जात के जलवे कायनात में बिखरे हैं हर सू। तेरी रूहानी कुव्वत को, तेरी रूहानी कुव्वत को अपने अंदर समोना चाहता हूँ। या रब तेरी रूहानी कुव्वत को अपने अंदर समोना चाहता हूँ। और आका दो जहान के लिए 2 शेर कहे हैं लास्ट वाले। कहता है कि तेरे नबी का हाथ, तेरे नबी का हाथ अगर मेरे सर पर आ जाए तो, तेरे नबी का हाथ, शाह साहब कहता है तेरे नबी का हाथ अगर मेरे सर पर आ जाए तो उनके हाथों से, तो उनके हाथों से जिंदगी का खास खिलौना चाहता हूँ। तो उनके हाथों से जिंदगी का एक खास खिलौना चाहता हूँ। और सेकंड लास्ट शेर कहता है कि तू अगर मेरे नबी का नाम, तू अगर मेरे नबी का नाम मेरे माथे पे लिख दे तो, तू अगर मेरे नबी का नाम मेरे माथे पे लिख दे तो उनके वजूद को चंद लम्हों के लिए, तो उनके वजूद को चंद लम्हों के लिए छूना चाहता हूँ। या रब तेरे सामने सर झुका के रोना चाहता हूँ, तेरे कंधों पे सर रखकर हिचकियों से रोना चाहता हूँ। और शाह साहब आपकी वालदा के लिए लास्ट शेर कहा है, शाह साहब कहा है कि या रब तू मुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। या रब तू मुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अब चंद लम्हों के लिए, अब चंद लम्हों के लिए माँ की गोद में सोना चाहता हूँ। मरूफ कानूनदान सैयद फसीह अली शाह की इल्फट लंदन में होने वाली इस तकरीब में, जिसका एहतमाम खुसूसी तौर पर शाहिद गोगी जो सैयद फसीह अली शाह के बेहतरीन दोस्त हैं और एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं, उन्होंने मिलकर किया। ईस्ट लंदन इल्फट में मरूफ कानूनदान और काबिल साद एहतराम शख्सियत सैयद फसीह अली शाह ने जहां तकरीब को अपनी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अदायगी से जहां तकरीब को 4 चांद लगाए,
वहाँ इस तकरीब को मुनक्कद करने में हम शाहिद गोगी जो कि तमाम तर महफिल के मुतनज़्ज़म थे और उनके इंतज़ाम ने तमाम तर हाज़रीन के दिल मोह लिए। सैयद फसी अली शाह के इस डेरे पर होने वाली इस खूबसूरत तकरीब का एहतमाम बाकायदा नदीम भट्ट जो कि एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं इल्फर्ट लेन के, उनके अलावा अफजाल साहब जो कि एक बेहतरीन कैटरर है, उन्होंने इस तकरीब के खाने का एहतमाम करके ना सिर्फ लजीज खानों से लोगों के दिल मोह लिए बल्कि उनकी बेहतरीन कैटरिंग ने तमाम हाजरीन को उनके लिए दुआ करने पर मजबूर कर दिया। इस खूबसूरत महफिल में नाते रसूल मकबूल का हदिया पेश किया मैडम भट्ट ने, जिनकी खूबसूरत आवाज़ ने तमाम हाजरीन के दिल मोह लिए। तेरी शान सबसे अजीम है, नहीं कोई तेरी मिसाल ही, सल्लू अलैहि। इस खूबसूरत और शानदार तकरीब में जो इल्फर्ट में मुनक्कद की गई, सैयद फसी अली शाह ने बाकायदा आखिर में तमाम हाजरीन के साथ अपनी खूबसूरत अदायगी के साथ दुआ पेश की और अफ्तार जब होने लगा तो फिर उनकी दुआ से और उन्होंने जिस अंदाज में अपनी वालदा को खराज तहसीन पेश किया, उससे तमाम हाजरीन ने उनकी वालदा के लिए दुआएं भी की और अपने अपने ख़ानदान में जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी दुआ की। इल्फर्ट लंदन की मशहूर शख्सियत सैयद फसी अली शाह के वालिदैन के लिए दुआओं के बाद स्पेशल तौर पर अफ्तार का अहतमाम किया गया, जो कि नदीम भट्ट जो कि प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं इल्फर्ट लेन के, और अफजाल साहब बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इस तकरीब में अपना खाना पेश किया और लोगों ने उनके खाने को बेहद पसंद किया। इस मौका पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के सुपरस्टार और पाकिस्तानी कम्युनिटी के हरदल अजीज सिंगर सुहेल सलामत ने तर्जमान ग्लोबल टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, होती है और सब एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के करीब होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सब भाइयों को ऐसे ही रखे, ऐसे ही रखे। आपने इस तकरीब में माशाल्लाह सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा काबिल प्यार आप हैं और हम लोग सबसे प्यार करते हैं। वजह क्या है? मुझे मेरे बड़ों ने, मेरे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने सिर्फ चीज़ समझाई है, एक चीज़ बताई है कि हमेशा झुक के और अदब के साथ सबसे प्यार से बात करो, तो वो अदब जो है वो फिर आपको बहुत कुछ दे देता है। खरीद के कुछ नहीं मिलता, अदब से सब कुछ मिल जाता है। लंदन में इस तरह का माहौल, ऐसा प्यार मोहब्बत बांटना ज़रा मुश्किल से मिलता है, आपको ये कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ये हर एक इंसान की तो साहब अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई है, किसी को किसी चीज़ की दी हुई ड्यूटी, किसी को किसी चीज़ की ड्यूटी। कोई डॉक्टर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये ड्यूटी है टू मेक पीपल हैप्पी थ्रू माई वोकल्स, थ्रू माई अदब, थ्रू माई रिस्पेक्ट। ये मैं बस ये करता फिर रहा हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है इस चीज़ से कि मैं 4 बंदों के चेहरे के ऊपर एक खुशी देखता हूँ। वेरी काइंड ऑफ यू सुहेल भाई। सुहेल सलामत लंदन में वो माया नाज शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी में ना सिर्फ नाम पैदा किया है बल्कि उन्होंने अपने किरदार और अपनी गुफ्तगू से, अपने प्यार से बहुत सारे दोस्तों के दिल हुए हैं और उनके दिलों में जगह बनाई है। तर्जमान ग्लोबल टीवी के इसी तरह एक और मेहमान के साथ, क्योंकि शाह साहब के कुछ दो दोस्त आए हुए कवरेज के लिए हम आए जाएँ तो स्पेशली इंशाल्लाह शाह साहब के एक और दोस्त के साथ मिले हैं।
नाज़रीन, तलत कियानी कम्युनिटी के अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत काम कर रहे हैं और खुशी तौर पर PIU को प्रमोट करने में इनका बड़ा अहम किरदार है। तो UK के अंदर जब आप PIU के नाम लेते हैं तो फिर तलत कियानी का अगर नाम नहीं आएगा तो मैं समझता हूँ वो बात भी अनकम्प्लीट है और वो काम भी अनकम्प्लीट है। आइए बात करते हैं तलत कियानी साहब से। सर, आज आप फजील शाह साहब की वालदा का आज इल्म था और फिर दुआ खैर थी, तो आप क्या फील करते हैं उनके हवाले से? फजील शाह ने जो ये थोड़ी सी तकलीफ आ शाह साहब माशाल्लाह कम्युनिटी के लिए एक माशाल्लाह बहुत मंजे हुए होती है, उसके अलावा एक बहुत अच्छे दोस्त और कम्युनिटी के लिए बेहाद खिदमत रहे हैं उनकी शाह साहब की। और आज उनकी वालदा का ख़त्म शरीफ था, इसमें हम लोग सब ने शिरकत की। और और इसके हवाले से शाह साहब रमज़ान के हवाले से भी माशाल्लाह पिछले पूरे रमज़ान में बड़ा अच्छा इफ्तार का एहतमाम किया। और हम समझते हैं कि शाह साहब का कम्युनिटी में एक बहुत अच्छा और आला किरदार है। थैंक यू। तलत भाई, हम सारे ही कोरोना के बड़े मुश्किल दौर से गुजरे। जी जी उसके बाद थोड़ा लोग प्यार से मिलना शुरू हुए हैं और ये डेरे में बड़ा आम किरदार। जी जी सर, इस माहौल के बारे में क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सारे दोस्त अहबाब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और एक बात, जैसे कि आपने कहा कि बड़ा एक मुश्किल दौर से हम गुजर रहे थे और ये नंबर 9 का यहाँ पे इस डेरे का बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों को, कोलीग्स को, सबको इकट्ठा करना और अफ्तार का एहतमाम करना माशाल्लाह बहुत। मेरी को करामत करे राजा अदालत साहब, उनकी मोहब्बत पूरी इनमें जलती है और उनका खलूस इनके अंदर ठाठे मारते हुए समुद्र की तरह नजर आता है। और मैं समझता हूँ इन जैसे लोग मेरे वतन का सरमाया है और कम्युनिटी में अहम मुकाम रखते हैं। इम्तियाज़ भाई अभी एक मायनाज शख्सियत मेरे मुल्क की। इम्तियाज़ भाई जरा तो सारे शाह साहब के बारे में और इस तकलीफ के बारे में क्या ख्याल है? बड़ा जी मज़ा आया कि लंदन में हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी शानदार महफिल, इतनी रूहानी और इतने पुरतकल्लुफ़ लवाज़िमात, फिर इतने प्यारे प्यारे दोस्त, सबसे मुलाकात का मौका मिला। तो मैं समझता हूँ शाह साहब की इस हवाले से एक बड़ी एक अच्छी काविश है, अच्छा लगा। और ये सर ये जो चेहरे चमकते दमकते आपको नजर आते हैं, बड़ी बात है जी। बेबसी आज के इस दौर में इतने लोग एक कैसा जगह पे फील करते हैं? कैसा फील बड़े करते हैं? अच्छे बड़े नामवर आज लोगों से मुलाकात का मौका मिला। बड़े ही एक अरसे के बाद बिग डॉन साहब से मुलाकात हुई, शायद इन्हें याद नहीं होगा। बीबी साहबा जब जिंदा थी और बीबी साहबा का और नवाज शरीफ साहब के रहमान मलिक के घर में जब वो एक तकरीब हो रही थी भाई, आपकी मेरी इनके साथ की यादें हैं। तो एक लिंक था इनके साथ, बीबी साहबा के साथ। तो और इसी हवाले से अच्छा वेरी काइंड ऑफ यू आपके साथ आपसे इतने अरसे बाद मुलाकात। वेरी काइंड। यहाँ पे हमारी ये आज के वो एक ऐसी शख्सियत ने कियत है जिनका नाम है नदीम भट्ट। नदीम भट्ट CBD कंपनी के ओनर हैं और अफजाल साहब, इनका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और कैटरिंग का बहुत खूबसूरत काम है। आइए पूछते हैं नदीम भट्ट से कि शाह साहब की वालदा के स्वाब के लिए और शाह साहब से मोहब्बत के इजहार के लिए सर आप आज की इस तकरीब में क्या कहेंगे? तो अल्लाह ताला सब मरहूमियत की मक़फ़रत फरमाए। आसिफों पे शाहजहाँ की वालदा, मेरी वालदा और जिनकी वालदा उन सब के लिए बस अल्हम्दुलिल्लाह इस एहतमाम के साथ बहुत मज़ा आया। सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, खास तौर पे भट्टो साहब से भी माशाल्लाह। बस अल्लाह सबको खुश रखे और ऐसे ही रोक के चलते रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਹਿਫਿਲ ਲਾਈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਨਦੀਮ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ काफ़ी अच्छा मुद्दा है। बट साहब कैसा फील करते हैं जब कम्युनिटी के लोग साथ मिलते हैं? बहुत अच्छा आदमी बताते हैं। पहली दफ़ा आके इधर निशान साहब देखे आए हैं, उन्होंने बताया आए हैं। तो दूसरा शाह साहब की वालदा का अल्लाह ताला उनको जन्नत में बस बहुत खुशी हुई है। मैडम बताएंगे कि आज की ये तकरीब जिस तरह हमारे दोस्त हमारे लोगों ने सजाई है, क्या तासुरात? आज की जो है
محفل سجی ہوئی ہے، یہ شاہ جی کی بیسیکلی والدہ کے لیے ہے. اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، آمین ثم آمین. حبیب جان صاحب، آپ تشریف لائے، اچھے دوستوں سے لندن میں. پہلے تو میں مفتی شاہ کا بہت ممنون مشکور ہوں کہ اپنی ماں کی یاد پر ہمیں بھی یاد رکھا. ماں ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو. اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے اور جو دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کو درجات بلند کرے. اور یہ اچھا موقع تھا کہ آج ماں خوش ہو رہی ہوگی، میری بھی اور فضل شاہ کی بھی اور آپ کی بھی. جب بچے ملتے ہیں محبت سے تو اس تقریب میں محسن ملک صاحب بھی سولیسیٹر ہیں، کمیونٹی کا ایک اچھا نام ہے، کمیونٹی میں کام کرتے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیسے ہو صاحب. ٹھیک ٹھاک وہ صاحب، کیسا لگا؟ شاہ صاحب کی جو والدہ ہیں ان کی دعا سے یہ معلوم ہوئی اور یہاں پہ ایک اپرچونٹی ہے. شاہ صاحب نے پورے الفٹ کو میرے خیال ہے کہ اپنی مٹھی میں بند کیے ہوئے اور یہاں پہ آ کے بہت سے بھائیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. ہم یہاں پہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے گھروں سے، تو یہی ہماری فیملی ہے اور شاہ صاحب کی مہربانی ہے کہ ہمیں یاد رکھتے ہیں. لندن میں ماحول جس طرح کا ہے، جو لوگ جس طرح سے ملتے ہیں ایک دوسرے کو، اس تقریب میں آ کے فضل شاہ نے جو خوبصورت پھول سجایا ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، کیا کہیں گے فضل شاہ کے بارے میں؟ شاہ صاحب کے بارے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہماری کمیونٹی کو اکٹھا کر دیا ہے اور شاہ صاحب کے علاوہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمیں آج تک ملا ہی نہیں ہے جہاں پہ اتنے سارے لوگوں سے ملاقات ہو سکے. اور کئی ہمارے جناب پچھڑے میں دوست مل جاتے ہیں یہاں پہ، تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. محسن صاحب بہت شکریہ. تھینک یو. جی ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے موقع دیا. میں آج اسپیشل جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ فضل شاہ صاحب کی والدہ کی اس تاریخ کے اوپر دعائیں فاتحہ خوانی بھی تھی اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست ندیم بٹ افضال صاحب جنہوں نے سارا کھانا ارینج کیا اور ماشاء اللہ بڑا اچھا کھانا تھا. آپ نے دیکھا ہی ایکسیلنٹ، بڑے کمیونٹی کے جو بڑی اہم شخصیت یہاں پر موجود تھی اور الحمدللہ میں خصوصی دعا گو ہوں شاہ صاحب کے کیونکہ والدین کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے اور اس طرح جو ہے وہ دوسرے بھی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے اور جو جا چکے ہیں ان کو بھی خدا تعالیٰ جو والدین کے سب کو جوار رحمت میں جگہ دے. پاکستان کو یاد کرتے ہیں. پاکستان دل راتے ہیں سارے دل ہی پاکستان، اسی پاکستان تو باہر آتا اور پاکستان سارے دل ہی باہر ہے. اور یہ اچھا لگتا ہے کوئی دوست پیار سے جب آپ کو بلاتا ہے سر اور آپ آتے ہیں. اور جی دوست کے بغیر زندگی نہیں ہے. آپ کے پاس 3 دوست ہو آپ جلدی ہیں. ویری کائنڈ آف یو ڈاکٹر. تعریف ہے. آپ سر فضل شاہ صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لندن میں کس طرح کی شخصیت ہے؟ فضل شاہ صاحب ایک بہت بڑے میرے انسان ہیں. جب سے ملا تو شاہ صاحب دل کے بڑے صاف ہیں. ان کا جو ڈیرا ہے یہ شاہ صاحب کے لیے ہم نے اور ڈیرا بھی چلایا ہے اور شاہ صاحب نے میرے سے بہت دل پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. میں کئی لوگ دیکھے اس وقت دور میں جو احترام کچھ کرتے ہیں عام آدمی کے لیے، بڑا ہو چھوٹا ہو سب کے تو میرے سے تو وہ خاص طور پہ دلی بھی میں تو نہیں کہوں گا. ان کے والدہ صاحب نے سکھایا چلا ہم آئے بلنگوں سے دعا کے لیے جائے برسی ہے تو لہٰذا ہم بھی شامل ہیں، سواب میں شامل ہیں. لندن میں ایک ایسی معروف شخصیت ہے جنہوں نے فضل شاہ صاحب کے ساتھ مل کر لندن میں وہ رونقیں لگائی ہیں، وہ پیار بانٹا ہے، وہ خوشبو بانٹی ہے جس خوشبو کی وجہ سے آج یہاں پہ لوگ اکٹھے ہیں، بیٹھے ہیں. تو آپ بتائیں کہ اپنے میاں صاحب جب آپ نے اقبال بھائی پہلی دفعہ شاہد گوگی جس طرح اور شاہ صاحب نے یہ محفل سجائی، کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ کیا سب یہ میں نے پہلے بولا ہے اس دور میں اس وقت کام ہے جو بہت مشکل جو سنبھالا ہوا ہے. یہ عام آدمی ہیں، بڑے بڑے سیٹ بھی ہیں، کروڑ پتی بھی ہیں، وہ نہیں کام کر سکتے جو
इस वक्त ये अल्लाह की दुआ है जी, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह हमें हिम्मत देता है। हम कोशिश करते हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम लोगों की खिदमत करने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं। अब दुआ करें। ये कर रहे हैं सब की। इकबाल भाई डेरा है ना जो, ये चलाना और इसको बैठाना और लोगों के साथ प्यार करना, ये अंबिया का कराम है, उनकी नस्ल से और उनके लोगों से चलता है। शायद गोगी ने और फजी शाह साहब ने कम्युनिटी के अंदर एक खास और हाजी साहब माशाल्लाह और बाबा साहब और ना जनाब शुरू किया गोगी साहब ने, फिर इन्हू सलामत रखा, कायम रखा, पर इन्हां दी लंबी उम्र करे, जिंदा सलामत रखे, इन्हां दे रिज़्क की बरकत पाए, इन्हां दी वजह तो माशाल्लाह ये सारियां रौनकां ने ते चल रहा है। बाबा हाजी कदी कदी ये आ जाने तो साडे नाज़रीन, शायद गोगी और फजी शाह, ये ऐसा लगता है कि जैसे एक तरफ चांद है और दूसरी तरफ सूरज है। कभी ऐसा लगता है कि दो जिस्म एक जान होने के साथ साथ मोहब्बतों की खूबसूरतियां जो इनके दिलों में वाबस्ता है। हम दो जिस्मों के दरमियान एक और जहान आ पट्टू साहब तारे आ गए तो ये तारे सितारे कहाँ हैं? सारे पट्टू साहब इनका ये शाह साहब का और गोगी का, मैं तुझ में ऐसा समा जाऊं कि मैं ही ना मैं तुझ में ऐसे समा जाऊं कि मैं ही ना रहूं और तू मुझ में ऐसे समा जाए कि तू हो जाए। आप प्यार से जमाते हैं, लेकिन जहाँ हमने जाना होता है गोगी वहाँ ये इकबाल भाई शायद लोग क्या देखते हैं प्यार से बैठे हुए चेहरों को? देखो जी, इतनी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे भाई इस कोरोना में भी हम इकट्ठे होते हैं, अल्लाह के दुआ करते हैं कि हमें ऐसे ही इकट्ठा रखें और जितने भी कोरोना के मरीज हैं इनसे बचा के रखें। देखो कितना प्यार मोहब्बत है, इतने मुश्किल वक्त के बाद भी हमारे पास लोग आते हैं और हमें प्यार देते हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियाँ सबको इधर हमारे साथ रोज़ा खोलने की तौफीक दे और हमें इतनी तौफीक दे कि नेक्स्ट ईयर हम इससे भी डबल कर सकें। आमीन। भाई आप जब मैं देखता हूँ सर्व करते हैं ना लोगों को, खाने लाना, रखना, ऑर्गेनाइज करना सिस्टम, ये मैं ईमानदारी की बात है, ये सब कुछ जो है ना मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देता, सब सजावट जो कुछ करता हूँ मैं खुद करता हूँ और अपने शौक से। मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ, 10 बजे उठने के बाद शॉपिंग शुरू हो जाती है, चीज़ें, फिर खाना पकाना, फिर रोज़े का टाइम, हर चीज़ को अल्लाह के फजल से कोशिश करते हैं कि हम अच्छे तरीके से अपने दोस्तों में पेश कर सकें। इकबाल भाई, नुसरत फतेह अली खान दुनिया का नाम है, लेकिन इकबाल भी दुनिया का नाम बड़ा हसीन है। इकबाल बताइए शायद गोगी के बारे में क्या था? शायद गोगी के बारे में मैंने पहले ही बोला है, इनका जो दिल है वो सबसे हार्ड, ठीक है, बहुत बड़ा दिल है, बहुत मुश्किल है पैदा होना। गोगी शाह गोगी, जिन्ना शाह गोगी, गोगी बहुत दूसरा है ना। इकबाल भाई हमारे देखो बर्मिंघम से, बर्मिंघम से मेरा कोई आए का ये बर्मिंघम से, ये हमारा बहुत पुराना सदियों का हमारा इनके साथ तल्लुक है। भाई हैं, बड़ी खिदमत की है इन्होंने। लाहौर के अमल की बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है। और आप सर क्या तासरात है आपके ना आज की इस तकरीब जी? मैं तो ये कहूँगा माशाल्लाह माह रमज़ान का महीना में हम सब दोस्त इकट्ठे होकर खुशियाँ बांट रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चीज़ हो सकती है। सुबह मियाँ गोगी साहब सुबह 10 बजे उठते हैं, उठ के सारे इंतज़ाम करते हैं कि रात को मेरे दोस्तों ने आके अफ्तारी करनी है, तो इससे ज़्यादा हमें क्या खुशी होनी। इससे भाई शेर अहमद साहब, ये माशाल्लाह जब हम इसकी आवाज़ सुनते हैं तो हमें एक सुरूर मिल जाता है, बहुत ही अच्छा ये इनका कलाम होता है। तो हमें मुझे रात को ये होता है कि शेर अहमद साहब आएंगे तो कलाम पढ़ेंगे, हमारे दिल को भी कुछ सुकून मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़ी रौनकें लगती हैं अगर दोस्त आते हैं, मिलते हैं, आपस में खाना खाते हैं और फिर हम चले जाते हैं, अगले दिन फिर आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसे साहब आप तशरीफ आए?
कम्युनिटी के अंदर हुआ बैठे रख हुई तो शाह साहब की वालदा का आज खत्म ही था, क्या कहेंगे? क्योंकि शाह साहब को तो एक सारे यूके में शाह साहब के डेरे का एक बहुत बड़ा नाम है और शाह साहब की वजह से जितने भी दोस्त हैं उनको आने का मिलने का मौका मिलता है और आपने देखा कि हर तरह की और स्पेशली ये कि कम्युनिटी को आपस में मिलाने का एक बहुत बड़ा यानी कि काम अंजाम दे रहे हैं और आप इनकी अल्लाह ताला उनको जन्नत की ज़रूरत मिलेगा और फ्यूचर में भी हम इंशाल्लाह जो मिल के बैठते रहेंगे और कम्युनिटी के सब लोगों को मिलने जुलने आपस में मिलने का मौका मिलता है। कैसे भाई स्ट्रेस के दौर से गुजरे इंसान जी जी और इस स्ट्रेस के दौर के बाद लोगों के साथ इस तरह वैसा एक ख्वाब है जी जी और ये जब तक अल्लाह की रहमत ना हो ये शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकती इंशाल्लाह। कैसे लगता है डिफरेंट लोग एक दूसरे को खुश होकर मिलते हैं सर, वो कैसा लगता है? एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था कि शाह साहब के डेरे की वजह से ये है कि हर दफ़ा ये तो चालू ही रहता है डेरा और पूरे यूके में मशहूर है तो अब स्ट्रेस के दौर के बाद भी इंशाल्लाह इस तरह की महफिलें होती रहेंगी ताकि लोगों को आपस में जो है मिल बैठने का मौका मिले और एक दूसरे की प्रॉब्लम भी कर लेते हैं लोग डिस्कस। एक मेन बात है ये है कि हर तरह के लोग हैं जब इधर आते हैं मुलाकात हो जाती है तो किसी की प्रॉब्लम होती है टॉक यूके के बड़े मशहूर फाइटर हैं ये, उसके 3 डैन है, यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, इनका बड़ा स्पेशल है, फ्री स्टाइल इनकी फाइट्स हैं बड़ी, ही इज़ वेरी फेमस मैन। कैसा क्योंकि आप वाकई मुझे नहीं पता था, अगर आप उठ जाएं तो मैं आपके लिए ताली जरूर बजाना चाहूँगा। आप जैसे पाकिस्तानी पाकिस्तान की शान पाकिस्तान का ये है कि मेरे यहाँ पे स्कूल में मार्शल आर्ट्स बहुत सारे हैं और वो भी इसमें ये फ़ायदा रहता है कि कम्युनिटी के लोग हमारे आते हैं ट्रेनिंग करते हैं बल्कि 2 ईयर्स अगो तो उनके मुल्किया बताने से नेशनल अवार्ड मिला था क्वीन से। सो बात कीजिए कि मैं चाहती हूँ नेक्स्ट स्पोर्ट्स में स्ट्रेस के टाइम से लेकर अब तो स्पेशली ये कि एक्सरसाइज हुआ ना तेरे स्ट्रेस। मेरा सर आखिरी सवाल जी जी मेरे वतन के हीरो को, मेरी कम्युनिटी को, मेरे प्यारों को और मेरे मुल्क के शहजादों को क्या पैगाम दें? ये पैगाम देंगे कि सबसे पहले तो ये कि एजुकेशन करें पूरी, पेरेंट्स के बच्चों के लिए तो ये पैगाम है कि पेरेंट्स जो है बच्चों के लिए अच्छे ही सोचते हैं और ये जो बोलते हैं स्टडीज़ कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ करें कंप्लीट, उसके बाद जो है क्योंकि हम फॉरेन कंट्री में हम एज एम्बेसडर हैं बेसिकली तो हर कोई चाहे कि पाकिस्तान का इमेज बेटर करने की कोशिश करें और दूसरी गलत किस्म की सरगर्मियों से दूर रहें। थैंक यू सर। से आज की ये तकरीब थी, आज का ये सारा फंक्शन, आज जिन्होंने अपनी वालदा के साथ मोहब्बत और खलूस का वो मीनार आज बनाया, उनकी दवाओं से खुशबू का वो सैलाब मुझे नज़र आया जिससे मुझे महसूस हुआ औलाद वाकई सदका जारिया। और शाह साहब ने अपनी वालदा के लिए ये आज दोस्तों के साथ मिलकर रमज़ान का एहतमाम और ये रोज़ा किया। आइए शाह साहब से पूछते हैं कि शाह साहब ये सारा काम क्या मुहरकात हैं जिनकी वजह से करते हैं? तो साहब ये दुनिया में माँ से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। जिस दिन से मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है मुझे पाकिस्तान नहीं लगता, मेरे लिए जाना 2 बार हो गया था, मैं बहुत कम जाता था। फिर वालिद मरहूम वहाँ थे, उनकी खातिर फिर जाता रहा, 2 साल उनके इंतकाल को हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में रिश्ता कोई नहीं। हम जो कुछ ज़िंदगी में करते हैं उसकी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि मेरे माँ बाप जब हमारी कामयाबी देखेंगे तो दुनिया में वाहिद वो रिश्ता है जो फ़ख्र महसूस करता है, अपनी औलाद से जेलस नहीं करता। माँ बाप वाहिद रिश्ता है जो चाहता है कि हमारी औलाद हमसे आगे बढ़ जाए। माई मदर आई लव हर वेरी मच, अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उनकी याद है आज के दिन उनका इंतकाल हुआ था। हम दोस्त मिलकर उनकी एहसाल सवाब के लिए दुआ की है, अल्लाह उनको करवट जन्नत। शाह साहब आपके कुछ दोस्त तशरीफ लाए आज, स्पेशली नए चेहरे मुझे देखने को मिले। शाह साहब ये जो दोस्त प्यार से आए आपके लिए, इनके बारे में क्या कहें? बहुत प्यारे दोस्त हैं जी, कुल्लू साहब बर्मिंघम से स्पेशली तशरीफ लाए हैं, अमेरिका से लाए हैं, तशरीफ ले आए हैं। इनको प्यार से बादल कहते हैं। मीर साहब बड़ी मशहूर शख्सियत है पाकिस्तान की, इंग्लैंड की, और इनके बड़े भाई हैं गार साहब सीनियर, और उधर बैठे हैं चीमा साहब मोहतरम, गोगी साहब के बहुत पुराने देरीना मरासिम हैं,
और उनकी वजह से हमारे ऊपर भी शफकत करते हैं, मेहरबानी करते हैं। तो इनको भी बताया कि बर्मिंघम थे, वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं कि इनको पता चला अपनी मरहुमा का हमने बरसी का एहतमाम किया, तो ये स्पेशली मेरे साहब शाह साहब नो डाउट यारों के यार और प्यारे दोस्त हैं। शाह साहब जी हमारे शाह साहब के बारे में क्या कहेंगे साहब? शाह जी, शाह साहब एक ग्रेट शख्सियत है और हमारे भाई हैं, बस थोड़े से कंजूस हैं, बाकी नहीं शाह साहब जी ग्रेट इज अ ग्रेट मैन। फसी अली शाह के इस खूबसूरत डेरे पर तकरीब का एहतमाम बड़ी ही खूबसूरती से किया गया और शाह साहब ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और जितने भी हाजरीन वहाँ मौजूद थे वो एक दूसरे से प्यार से, खूबसूरती से, मोहब्बत से और एहतराम से मिलते हुए एक दूसरे से जुदा हुए और तकरीब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने अख्ताम को पहुंची। तर्जमान ग्लोबल टीवी यूके यूट्यूब के इस चैनल पर इस तरह की तकारीब को कवर करने के लिए ये पहली काविश थी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में यूके और खुसूसन लंदन में होने वाली ऐसी तकारीब जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का सरबुलंद करने में अपना किरदार अदा करें या पाकिस्तानी कम्युनिटी जिन तकारीब को पसंद करे, ऐसी ही तकारीब को मुकम्मल कवर करने के लिए आज ही हमसे रब्ता कीजिए। हम उम्मीद करेंगे कि तर्जमान ग्लोबल टीवी यूके यूट्यूब का ये चैनल हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी में जितनी मोहब्बत और प्यार की शम्मे रोशन है उनको अपने साथ जगाएगा, चमकाएगा और लोगों की इसी तरह खिदमत करता रहेगा।